बेबीज को गोरा रखने के लिए मिल्क एंड मलाई लगानी चाहिए। हाँ, ये तो ऑब्वियसली एक मिथ ही है एंड डार्क स्किन इज एक्चुअली अ मोर हेल्दियर स्किन। काजल जो होता है वो आईज को बड़ा करता है। सो वो बड़ा नहीं करता है। सर्टेन टॉयज विल मेक बेबी स्मार्टर। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत सारी न्यू मॉम्स की क्वेरी आती है कि बेबीज को वॉकर देना चाहिए या नहीं। न्यू पेरेंट्स अक्सर बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं कि अपने बेबी को ये दे ये ना दे, एंड उन्हें अलग अलग सजेशंस मिलती है फ्रॉम डिफरेंट रिलेटिव्स फैमिली मेम्बर्स क्योंकि ये सही है ये सही नहीं है, एंड ऑफन दे आर लेफ्ट इन अ टर्मोइल ऑफ थॉट्स एंड सजेशंस, एंड उन्हें इनमें समझ नहीं आता कि क्या एक्चुअली में उन्हें करना चाहिए फॉर अ हेल्दी बेबी। इसलिए आज के हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही रिनाउंड पीडियाट्रिशियन आई हैं जिन्होंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है अबाउट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली मेड पेरेंटिंग मिस्टेक्स एंड कैसे उन्हें अवॉइड किया जा सकता है एंड व्हाट्स द आइडियल वे ऑफ रेजिंग अ हेल्दी बेबी। सो डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड एंड इसे किसी एक न्यू पेरेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए। Hi, Dr. Sharan. How are you doing today? Hello, I'm good. I've been waiting since a very long time to shoot this podcast with you, but I'm इतने busy रहते हो. But I think that's a great thing. Thank you so much. It's not like that. हमारी ब्रांच ही ऐसी है, थोड़ी बिजी उसमें हो ही जाते हैं। Yes. So, I would like to know कि what are some of the most common types of parenting mistakes जो कि parents commit करते हैं? The most important the mistake which the parents do is about the hygiene. Every parent wants the best for their child, but unfortunately हमारे काफी customs भी हैं, काफी रीति रिवाज भी हैं, and because of that some कहीं ना कहीं पे hygiene थोड़ी सी compromise हो जाती है, in the sense कि आपके घर में guests आते हैं, आपका कोई festival है, कोई रस्म है, तो बहुत सारे guests आएंगे, and बच्चों को बहुत ज़्यादा unnecessary exposure हो जाता है. So basically just a little bit of seclusion, maintenance of hygiene, these things are a little more important. This is the most commonest thing which happens. Okay. Another very common question is कि babies को formula milk नहीं देना चाहिए. Like, is it okay for the babies to have it या फिर No. cow milk या No, फिर cow milk though is out of discussion because Okay. cow milk is something which you give after 2 years. It is not recommended, ठीक है? Okay. And the best milk for the baby is breast milk only. So ideally you should do breastfeeding. So mother को ideally breastfeeding ही करनी है. Yes, if for some reason breast milk production कम है और there is some other reason उनकी कोई surgery हुई है, कोई ऐसी medicines चल रही हैं because of which वो नहीं दे सकती हैं, then you have to go for the formula feed. But if you're going for the formula feed, then you have to know exactly formula feed को किस तरह से बनाना है because there are a lot of permutations and combinations. So the water has to be boiled properly, then the bottle or whatever container you are using वो boil करना है. So hygiene again वहाँ पे भी बहुत important है. So best रहता है कि breastfeeding ही मदर कराए. Okay. अब बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो मदर्स होती हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क दे ही नहीं पाती बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क आने में प्रॉब्लम्स होती है या कुछ, तो उसका क्या रीजन है? ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स क्यों आती है? Most important thing is breast milk production is has a very big psychological component to it. And naturally also in all the mothers the milk will start coming from third day onwards. Day 1, day 2 पे it is very rare कि किसी मदर का बहुत अच्छे से मिल्क आएगा because milk production by nature ही वैसी है कि first day second day तक आपका पतला पतला मिल्क आता है और डार्क येलो मिल्क आता है which is known as the colostrum, and generally by the third day the milk production increases. So generally the mothers are very tense, and if they become very tense कि मेरा मिल्क नहीं आ रहा है and they keep thinking about it because they are very stressed out about the baby, so the milk production will decline. So if the mother is relaxed, she is having a open frame of mind, she is confident enough कि मेरा milk आएगा ही, third day के बाद मैं try करती रहूँ day 1 पे, day 2 पे, she has to keep trying, she has to keep putting the baby to breast, which is very important. A lot of mothers feel कि since there is no milk, there is no point to putting the baby to breast. They don't realize the moment आप baby को breast पे लगाते हो, that itself gives the stimulus for the breast milk production. So it is very important to put the baby to breast. तो आपने day 1 पे हर 2-3 घंटे पे बेबी को ब्रेस्ट में लगाना है, दिन के टाइम भी रात के टाइम भी. सो बाय थर्ड डे आपका मिल्क आएगा, एंड देन फ्रॉम थर्ड डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 5th 6th 7th डे द मिल्क प्रोडक्शन विल इंक्रीज. बट यू हैव टू कीप अ ओपन माइंड एंड मदर हैज टू बी रिलैक्स, शी शुड नॉट बी टेंस्ड आउट. एंड यस, अगर फिर भी उनका थोड़ा मिल्क प्रोडक्शन कम की तरफ है, देयर आर सम गैलेक्टोगोग्स जो हम देते हैं जो थोड़ा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. इट इज लाइक आपका अजवाइन हो गया, आपका सौंफ हो गया. देन सिमिलरली देयर आर सम granules are all are in the market which your gynec can recommend to you. But the most important factor is कि mother should be relaxed, she should be happy, she should be confident कि मेरा दूध आएगा, and she should put the baby to breast. Two subsidiary questions. आपने जैसे बोला कि फर्स्ट डे पर डार्क येलो मिल्क आता है, सो बहुत जगह ये भी नोशन है कि फर्स्ट डे पर मिल्क, लाइक फर्स्ट मिल्क मदर का नहीं देना चाहिए. Yeah. कोई कहते हैं कि नहीं देना चाहिए.
So Yeah, this is because it is known as a old wives' tale. This is because the dark yellow milk is colostrum जो बाद में आता नहीं है, तो लोगों को लगता था कि ये कुछ खराब है, इसको फेंकना चाहिए. So it's not like that. This is a milk which is very rich in proteins. It is rich in immunoglobulins. So ये बच्चे को protection देगा because जो बच्चे होते हैं अभी उनका immune system इतना better अच्छा नहीं होता है. They don't make so many antibodies against the infection. So ये mother की immunoglobulins हैं जो colostrum से जा रहे होते हैं. So that is why ये milk बड़ा गाढ़ा और बाकी breast milk से फर्क होता है. So this is actually the very important milk and it should not be wasted. It should be given to the baby चाहे जितना कम भी आए बच्चे को देना चाहिए. ओके अब जैसे जिन मदर्स का नहीं आता स्टार्टिंग में, लाइक फॉर एग्जांपल किसी का 3 days 4 days तक नहीं आया, तो फिर बेबी को क्या दें? Again, you will have to give formula only. फॉर्मूला only. There are some special feeds आजकल मार्केट में आ गई हैं जो बेबीज के लिए आई हैं, but formula milk is formulated for a newborn baby, so you have to give that. There is no other option. And otherwise, आप breast पे ही बेबी को लगाओ. First 3 days बेबी की डिमांड भी बहुत कम होती है. Okay. It is natural for the first 3 days the baby will lose weight. That is the way things are being made. ऊपर वाले की तरफ से ये ऑटोमेटिक ऐसा सेटअप है कि पहले 3 दिन दूध कम आएगा और बच्चे को भी पहले 3 दिन दूध थोड़ा कम ही चाहिए. वो कम पिएगा, उसका डिमांड भी कम होगा, थोड़ा वेट लॉस भी होगा एंड 3 days के बाद उसकी डिमांड भी बच्चे की बढ़ेगी. सो आइडियली वो मैच हो जाता है. बट यस, इफ यू फील बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन सप्लीमेंट विद फॉर्मूला. ओके एक और चीज है, आई रेड इट समवेयर कि मदर्स जो होती है वो अपने बेबी की सेम एज के अदर बेबीज को भी ब्रेस्ट मिल्क अपना दे सकते हैं. यू थिंक दैट्स ट्रू? यस, यू कैन बिकॉज वी हैव ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स नाउ. तो ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स होते हैं जैसे आपके मिल्क बैंक्स उनको बोला जाता है, जैसे आपके ब्लड बैंक होते हैं. सो कोई मदर जिसका इतना ज्यादा मिल्क आ रहा है, शी इज एबल टू डोनेट, देन वो मिल्क आप मिल्क बैंक में देते हो, तो यस आप मिल्क अपना डोनेट कर सकते हो एंड वो मिल्क फिर पैस्चराइज होके सब टेस्टिंग के बाद दैट इज द मिल्क जो कभी प्रीटर्म बेबीज को दिया जाता है या किसी नर्सरी में दिया जाता है एज द डिमांड इज देयर कि उसकी मदर के पास मिल्क नहीं है, ये बच्चा बहुत प्रीटर्म है और मदर इज इन अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट. सो यस, यू कैन गिव द मिल्क. बट अब इंडिया में थोड़ा ये भी कल्चर है कि रिलेटिव्स ऐसे भी एक दूसरे को दे देते हैं. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आइडली दैट मिल्क हैज टू बी टेस्टेड फॉर ऑल द इन्फेक्शंस, फॉर ऑल द वायरल्स. इट हैज टू बी पैस्चराइज्ड एंड देन इट हैज टू बी गिवन व्हिच इज डन इन अ मिल्क बैग. बट अगर आपके फैमिली में मे बी इफ यू हैव योर ननद है, कजिन है एंड फॉर वट एवर रीजन आप नहीं कर रहे हो, इफ यू हैव कंसेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स, यू कैन गिव इट. बट रिकमेंडेड तो प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद देना चाहिए. एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को किस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आइडली आपको नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली यू आर स्प्रेडिंग इन्फेक्शन. स्पेशली लिप किस नहीं करना चाहिए, कहीं पे भी किस नहीं करना चाहिए. आप अगर चीक्स पे भी बहुत किस करोगे, दे आर मोर प्रोन टू पिंपल्स, उनको भी दाने निकल आएंगे. सो किसिंग इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड. ओके. अनदर क्वेश्चन इज कि बेबीज को सॉलिड फूड कब से देना that is at 6 months. This is known as weaning and weaning should be done at 6 months of age. एंड अनदर एक pacifier टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसमें मदर्स फ्रूट या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स This is something new which has started now. It is basically a fad. There is no health benefit of that. आपने जो बच्चों को फ्रूट देना है, आप यस उसको मैश करके दीजिए और नॉर्मल चम्मच से भी आप खिला सकते हैं. आजकल ये एक फैड आया है, वट एवर प्रमोशनल इवेंट वट एवर हुआ है कि उसके अंदर आप स्टफ करके फूड बच्चे को दे रहे हो एंड द बेबी सकिंग. सो दैट इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड. ना ही कोई उसके एडेड एडवांटेज है. आप सिंपल नॉर्मल जैसे आपका जो भी फ्रूट है, सपोजिंग बनाना है, मैंगो है, पपाया है, जस्ट मैश इट. अगर एप्पल है, सो यू हैव टू कुक इट. इट बिकम्स कैरामलाइज, इट बिकम्स ब्राउन इन कलर एंड देन यू कैन जस्ट मैश इट with the whatever spoon या जिससे, and आप नॉर्मली जैसे चम्मच से बच्चों को खिलाते हैं वैसे खिलाइए. ओके. अनदर क्वेश्चन इज कि क्या बेबीज नॉर्मल इंडियन फूड खा सकते हैं स्पाइसेस वाला, लाइक या फिर तो अडल्ट्स को भी इतना स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है. सो वंस यू आर वीन द चाइल्ड, मतलब 6 months के बाद आपने वन न्यू फूड पर वीक करके बच्चे को ऐसे करके फूड्स आपने इंट्रोड्यूस करे हैं और इंट्रोड्यूस करते करते आपने सारे उसको होम फूड्स देने हैं जिसमें आप फ्रूट्स भी दोगे, घर की बनाई हुई दाल चावल एंड यस उसमें मसाला नहीं होना चाहिए. यू कैन पुट अ पिंच ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. इट इज ऑल्सो नॉट कि आपको बिल्कुल 0 सॉल्ट एंड शुगर देना है, जो वो भी आजकल एक हमारा एक थॉट प्रोसेस वो भी चला है. बट a lot of research has come which has shown कि pinch of sugar देना चाहिए, sorry pinch of salt देना चाहिए. So salt is actually more important. Sugar is your personal choice. You may give natural sugars like honey हो गया या dates हो गया, जो आप dates को boil करके घर में बना सकते हो. You can give them, but the point is it has to be very less. Just a pinch of sugar or a pinch of salt. So point is the child can take home foods. जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 1 साल का हो गया, आपके घर के खाने बच्चा खा सकता है,
प्रोवाइडेड आप भी हेल्दी फूड खा रहे हो, आप भी बहुत ऑयली, बहुत मसालेदार नहीं खा रहे हो. Right. So if you're eating healthy food, your child can also have that same food, same दाल जो उसके लिए बनी वो आपके लिए भी बन जाएगी, especially by the time the child is 1 year old. So you don't need to make any special food for the baby. You should eat healthy yourself also. And what about these packaged baby foods? Yeah, I never recommend them. Packaged food किसी के लिए भी recommended नहीं है. It is always best कि आप fresh home foods दो. तो आप घर में जो खाना बनाते हो आपको वही देना है, जिसमें आपके Indian foods में आपके अलग अलग दालें आएंगी, अलग अलग vegetables आएंगे, आप उनको boil कर सकते हैं, mash कर सकते हैं, या आप उसको दाल के साथ डाल दो, जैसे वो खिचड़ी हम कहते हैं, खिचड़ी बना के दे दो. एंड जो variety of fruits आपके हैं जिसमें आपके solid fruits पे ज़्यादा focus करना चाहिए. Okay. So don't focus more on mossambi and watermelon. You may give them later, but the first fruits जो आप प्रेफर करते हो बच्चे के लिए वो एप्पल, बनाना, आपका पपाया, दीज आर द फ्रूट्स जो कि उसकी वेट गेन में भी कंट्रीब्यूट करेंगे. Right. अब जैसे बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी वर्किंग वुमेन आजकल लाइक दे आर वेरी बिजी एंड ऑफ कोर्स दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट दैट मच टू देयर बेबीज अपब्रिंगिंग, राइट, एट द अर्लियर स्टेज एटलीस्ट. तो तब क्या करना चाहिए? मतलब तब उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है तो उन्हें पैकेज फूड्स देने पड़ते हैं कई बार. आई डोंट थिंक सो. यू मे बी जितने भी आप बिजी हो, एट द एंड ऑफ द डे आप घर तो आ ही रहे हो. एंड कुछ जैसा मैंने बोला, चाहे आप बनाना दे रहे हो या आप पपाया दे रहे हो, तो सिंपली मैश करके देना है. सो आई डोंट फील कि इतना पैकेज फूड देने से आपका कोई टाइम सेव हो जाएगा, है ना. तो इट इज बेटर कि आप घर के फूड दो. और कोई अगर आप सपोजिंग खिचड़ी बना रहे हो, इवन इफ यू आर बिजी, क्या करना है, बस डाल के प्रेशर में एक बॉयल लगा दो या एक सीटी लगा दो, सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए. सो पैकेज फूड में भी वही है, आपने लेना है, मिलाना है, कुछ तो करना ही है ना. सो आई विल ऑलवेज से, जहां तक बेबीज का सवाल है, वन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज. इवन इफ यू आर बिजी, यू कैन जस्ट टेक आउट 10 minutes, इतना ही वक्त लगेगा बनाने के लिए. सो आई थिंक वी शुड स्टिल गो फॉर द होम फूड ओनली. सो एक और चीज है हमारे इंडियन सेटअप में कि बहुत सारी मदर्स एंड बहुत सारे पेरेंट्स अपने बेबीज को फोर्स फीड करते हैं बिकॉज दे थिंक कि उसे क्या पता हमारा पेट, उसका पेट भर गया या नहीं, बेबी को क्या पता. इज इट कि बेबीज को उनका एपेटाइट नहीं पता होता या इज इट द अदर वे अराउंड? सो अगर आप नॉर्मली बैठे हैं तो आप गोद में भी बच्चे को लेके बिठा सकते हैं, और जैसे आप खुद अपने को खाना खा रहे हैं, आपको उसी टाइम, चाहे बेबी का, आपने कोई बेबी का बोल बनाया है और उसका कोई स्पेशल अगर मैश फूड बनाया है या कुछ भी, आप खुद हाथ से भी मैश कर रहे हो, चाहे चम्मच से खिलाना है, चाहे हाथ से खिलाना है, जब आप अपने को भी खा रहे हो उसी टाइम बच्चे को साथ साथ खिलाने की हैबिट डालो. हाँ, अगर आप बिल्कुल अपना और बच्चे का मैच नहीं कर सकते हो तो भी बेबी को बैठ के खिलाने की हैबिट डालनी है. जितना बच्चा खा सकता है उतना ही देना है. नहीं खाएगा कोई बात नहीं, गिव अ गैप ऑफ 2 to 3 hours. व्हेन यू स्टार्ट वीनिंग एट 6 months ऑफ एज, बेबीज आर वेरी रेस्टलेस. वो थोड़ा सा खाएंगे, 2 चम्मच 3 चम्मच खाएंगे, उसके बाद और नहीं खाएंगे. सो छोड़ दो. अगले 2-3 घंटे के बाद अगेन यू मे ट्राई द सेम थिंग और यू मे गिव अ डिफरेंट फूड. बट द पॉइंट इज ईटिंग हैबिट्स हेल्दी होनी चाहिए, कि हम बैठ के खा रहे हैं, अपने लिहाज से खा रहे हैं. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता वो चम्मच या हाथ से अगर खाना है तो बच्चा को खुद भी एनकरेज कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं कि फिंगर फूड्स दे दो इसको. तो बच्चा खुद हाथ डालेगा, खुद भी मुंह में डालेगा या स्पून से उठाएगा, थोड़ा फेंकेगा, थोड़ा गिरेगा भी. हमारा थोड़ा इंडिया में ये भी है कि बस गंद नहीं मचनी चाहिए, ये तो गंद मचा देता है तो इसलिए मैं ही खिला देती हूँ. वो नहीं हमें होना चाहिए. वी शुड लेट द बेबी एक्सपेरिमेंट, यू शुड फील द टेक्सचर्स. एंड ये जो हम कहते हैं चम्मच से जब बच्चा खाएगा तो ये इसका एक माइलस्टोन है, इसका डेवलपमेंटल स्किल है, मोटर स्किल डेवलप हो रहा है. किस तरह से चम्मच को पकड़ना है, किस तरह से उठाना है, किस तरह से मुंह में लाना है. सो वो बच्चे को करने देना चाहिए. एंड थोड़ा सा उसमें गंद बचेगा या थोड़ा सा खाना गिरेगा तो कोई बात नहीं है, बट आपको एक प्रॉपर जगह बैठ के, चाहे टेबल पे बैठना है, चाहे जमीन पे आपने बैठना है, अपना जो भी दस्तरखान या जो भी चादर डाल के, सो यू कैन डू इट. बट या यू शुड एनकरेज दिस टाइप ऑफ फीडिंग, नॉट कि आप गोद में ले लेके घुमा घुमा के खिला रहे हो. अनदर थिंग जो इंडियन हाउसहोल्ड्स में बहुत कॉमन है कि लोग अपने बेबीज को जब वो नॉर्मल लाइक काउ मिल्क या गोट मिल्क, बफलो मिल्क पीने लग जाते हैं, तब वो नॉर्मल मिल्क में चाय मिला देते हैं, टी लीव्स मिला देते हैं. यू थिंक दैट्स ओके? नो, एज आई वुड से कि हमें बच्चों को पहले तो एक काउ मिल्क, गोट मिल्क, चाहे बफलो मिल्क है, ये हमको देना ही नहीं है. इट इज नॉट रिकमेंडेड. बच्चे को 6 months तक ब्रेस्ट फीड करना है एंड आफ्टर 6 months बेबी हैज टू बी शिफ्टेड टू सॉलिड्स. और यस, उस टाइम पे अगर आप कुछ उसको थोड़ा सा दूध दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो मदर मिल्क ही कंटिन्यू करेगा, विच विल टेपर डाउन. एंड यस, इफ यू हैव गिवन सम मिल्क टू द बेबी विच यू देन यू हैव टू गिव फॉर्मूला ओनली. आप फॉर्मूला मिल्क ही बच्चे को दोगे, बट 6 months के बाद आप मेनली उसको खाना खिलाएंगे. सो बच्चा 6 to 7 सॉलिड मील्स अ डे लेगा. अभी अगर बेबी 6 times या 7 times को
सॉलिड मील्स ले रहा है वो दूध कितना ही पिएगा. सो पॉइंट है कि द मिल्क इनटेक इटसेल्फ हैज टू बी लेस सो दैट बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चा फुल सॉलिड्स पे आ गया है और दूध बिल्कुल नाम का पी रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम उसका दूध छुड़ा ही देते हैं. सो दूध ही कम देना है तो दूध में चाय पत्ती ऐड करना, ये ऐड करना प्रैक्टिस रॉन्ग है और वो हमको करनी भी नहीं चाहिए. ओके, बट हमारे इंडियन हाउस होल्ड में दूध बहुत ही, आई फील मदर्स एंड फैमिलीज आर ऑब्सेस्ड विद मिल्क, राइट? Yeah. मतलब मुझे भी इतना जबरदस्ती दूध पिलाते थे. आई यूज्ड टू हेट मिल्क. मतलब आई यूज्ड टू समटाइम्स प्यूक. एंड मतलब मेरी मॉम, शी यूज्ड टू ट्राई अलग अलग जो मिल्क एडिटिव्स होते हैं ना, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, सब कुछ ट्राई किया है एंड आई नेवर लाइक्ड इट. मतलब बट स्टिल इंडियन हाउस होल्ड में मिल्क इज अ बिग थिंग. यू थिंक You're very much correct in saying that. हमारा बहुत ज्यादा obsession with milk है. Yeah. पेरेंट्स को ये लगता है कि दूध तो पी लिया, दूध तो पी लिया, दूध तो पीना है. बट अनफॉर्चुनेटली मिल्क बच्चे के लिए उतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं. स्पेशली दूध इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए फॉर द फर्स्ट 6 months. एंड एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो दैट इज द ब्रेस्ट मिल्क विच इज इम्पोर्टेंट. येस, यू मे सप्लीमेंट विद द फॉर्मूला मिल्क अगर ब्रेस्ट मिल्क कम है, वरना आपको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए. कोई भी दूध हमारा, चाहे काऊ का है चाहे बफलो का है, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अ बेबी हु इज लेस देन 1 year. आइडियली तो आपको 2 years के नीचे भी नहीं देना चाहिए. तो चलो अगर 1 year के बाद अगर आप बच्चे को दूध दे रहे हो, आपके घर में टोन्ड मिल्क आ रहा है, वट एवर यू आर गिविंग इट, यू मे गिव इट बट इट इज नॉट रिकमेंडेड. रिकमेंडेड है कि बच्चा खाना ही खाए. बट पेरेंट्स का यस एक खुद साइकोलॉजिकल कंपोनेंट बहुत ज्यादा है कि ये दूध पिए. अनफॉर्चुनेटली व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि जब वो बच्चे को इतना ज्यादा दूध जबरदस्ती पिलाते हैं, हम कॉमनली डेली ऐसे बच्चे देखते हैं दिन के 5 या 6 हु आर एनीमिक, जो बिल्कुल बहुत ही पेल हैं, जिनमें एनर्जी नहीं है, जो लेथार्जिक है, बिकॉज वो सिर्फ मिल्क ले रहे हैं. पेरेंट्स उनको मिल्क ही जबरदस्ती पिला रहे हैं कि खाना नहीं खा रहा चलो दूध पिला दो, ये नहीं कर रहा चलो दूध पिला लो. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मिल्क इज द रेगुलर मिल्क जिससे हम घर में जैसे चाय बनाते हैं. सो इट्स नॉट अ वेरी न्यूट्रिशियस मिल्क ऑल्सो. ठीक है ना. सो दूध हमारे को बेसिकली सबसे, मैं कहूंगी मेरे लिहाज से तो इट इज द मोस्ट यूजलेस फूड आफ्टर 1.5 year ऑफ एज. इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है. इनफैक्ट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सबको दूध कम पीना चाहिए. जो आजकल लोग ट्रेंड चल रहा है ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री, वो ट्रेंड कहाँ से निकल रहा है? वो यहीं से निकल रहा है बिकॉज आपके जो शरीर में जो हमारे नॉर्मल जो डाइजेस्टिव पार्ट्स होती हैं वो हमारी मिल्क के लिए होती हैं छोटी उम्र में. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वो खुद ब खुद हमारी कम हो जाती है. तो बच्चों को हमेशा रिकमेंडेड है कि वो खाना खाएं. तो पेरेंट्स हैव टू लीव दिस ऑब्सेशन विद मिल्क. यू आर वेरी मच राइट, इट इज एन ऑब्सेशन ओनली. बच्चे को उस दूध का कोई फायदा नहीं मिल रहा है. ओके, वन मोर थिंग. अब इंडिया में जैसे वेव आई है, एक फूड फार्मर करके यूट्यूबर है, उन्होंने बेसिकली ये वेव स्टार्ट करी थी. बेसिकली बॉर्नविटा में उसमें लिखते हैं ना कि इट्स हाई इन विटामिन, इट्स हाई इन दिस, इट्स हाई इन प्रोटीन, व्हाटएवर, ऑल दोस थिंग्स. बट पीछे देखा जाए तो सिर्फ कोकोआ एंड शुगर है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर टेक ऑन दीज milk additives, Complan, Horlicks, I think you Bonvita? yourself have also answered the question because ये जो Complan और Bonvita ने जो अपने आप को प्रमोट किया था कि हम मतलब सेहत के लिए अच्छे हैं, हम हेल्दी ड्रिंक्स, दे आर नॉट दैट, दे आर फिल्ड विद शुगर. आई ऑलवेज रिकमेंड माय पेरेंट्स या जो बच्चों के हमारे न्यू बॉर्न भी होते हैं कि आपने ये सब देना ही नहीं. या आदत ही मत रखना कि जब आपका बच्चा 1 साल या 2 साल का होगा कॉम्प्लान बॉय या कॉम्प्लान गर्ल बनाने की कोई जरूरत नहीं है. आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल स्टोरी. व्हेन आई वाज अ किड, एक ना नॉर्मल टीवी पर एड आती थी कि आप दूध फिनिश करो कॉम्प्लान एंड देन यू जंप फ्रॉम समवेयर एंड यू से ओह आई एम कॉम्प्लान गर्ल या कॉम्प्लान बॉय. एंड मैं वो करती थी एंड दैट वाज द ओनली मोटिवेशन फॉर मी टू ड्रिंक मिल्क कि बेड से बाद में जंप करने को मिलेगा. कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज चाहे बॉर्नविटा हो चाहे कॉम्प्लान है, जो भी है, दीज आर एक्चुअली फ्लेवर्ड ड्रिंक्स. उनका वर्ड फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होना चाहिए रादर देन हेल्थ ड्रिंक्स. दे आर नॉट हेल्थ ड्रिंक. आप एक फ्लेवरिंग डाल रहे हो. इट इज लाइक आप अपने दूध में नटेला डाल के पी लो. इट इज समथिंग लाइक दैट. सो इसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है. राइट. अनदर थिंग इज कि आजकल बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहे हैं और उन्हें भी बहुत टाइम बाद पता चल रहा है. मतलब पहले तो यूज्ड टू थिंक वो नॉर्मल गैस है, दूध पीने से क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, किसी को. बट बहुत लोगों को पता चल रहा है कि दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट. डू यू थिंक ये बाय बर्थ होता है या ये ओवर टाइम डेवलप होता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस जनरली वेरी रेयर केसेस में बाय बर्थ भी होता है. काफी लोग कभी कुछ होते हैं जो बाय बर्थ लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं. बट जनरली जो लैक्टोज इंटॉलरेंस हम देखते हैं, जो आपने बात करी, जो कॉमनली आजकल लोग देख रहे हैं, हम तो बचपन में दूध पीते थे अब नहीं पी पा रहे हैं. दैट इज बिकॉज जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो हमारी लैक्टेज एंजाइम
एंजाइम है जो डाइजेशन के लिए होती है, वो होती ही बच्चों में ज्यादा है। इसलिए जब 6 मंथ तक बच्चा दूध पीता है तब वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करती है। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ये एंजाइम का जो शरीर में फॉर्मेशन होता है वो खुद ब खुद कम हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि जब आप बड़े हो जाते हो आपको दूध पे फोकस नहीं करना है। तभी जो हमारे इंडियन कल्चर में है कि आधे पेरेंट्स का कि दूध हमेशा पीना है, दैट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज उतनी डाइजेस्टिव पावर बॉडी में रहती ही नहीं है, और इसी की वजह से आपको ब्लोटिंग आ जाएगा, गेस्ट्राइटिस हो जाएगा और ये सब चीजें हो जाती है। सो ये नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है कि लैक्टेज एंजाइम विद एज आपकी कम होगी, और दूध आपको बचपन में ही लेना है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। मैक्सिमम 1.5 to 2 years तक भी आप थोड़ा बहुत सप्लीमेंटल ले सकते हो, पर मेजोरिटी आपको सॉलिड्स ही लेने हैं। सो मिल्क का हमारे को उसमें कुछ ऐसा करना नहीं। ठीक है। ओके, इंडिया में आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंड आ रहा है कि एवरीवन वांट्स टू बी फिट. Okay, they want to be healthy, they want to remain in shape, right? So that is also one hindrance sort of जो कि आ रही है babies born करने में, women को especially. And then ये एक community आ गई है new, DINK, double income no kids community, जो कि आजकल बहुत दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे होते हैं डबल इनकम, एंड दे डोंट वांट टू बेयर किड्स बिकॉज ऑफ कोर्स दे वांट टू रीच हाइट्स इन देयर करियर व्हाटसोएवर मे बी द रीजन फॉर देम स्पेसिफिकली. सो डू यू थिंक कि एक वुमेन जो बेबी बॉर्न करती है, लाइक कंसीव करती है खुद से अपनी बॉडी से, एंड जो नहीं करती, जो सरोगेसी या फिर अदर ऑप्शंस चूज करते हैं, डू यू थिंक इनकी बायोलॉजिकल हेल्थ में कोई डिफरेंस होता है? Look, I will always say कि जो सरोगेसी आप कर रहे हो that it is a personal decision, but it is not recommended. मतलब हम कहेंगे it's not right actually में. अब तो देखो सरोगेसी के बहुत सारे laws and rules and regulations भी आ गए हैं. Few years back it was a very relaxed type of a thing, or you can say a very lax type of a thing कि कोई regulations नहीं थे, कोई control नहीं था. तो yes, surrogacy you can say was being abused also. Okay. कि कोई मदर बिल्कुल फिट है और बिल्कुल ठीक है, and just because उसको फिट रहना है और वो रहना है and she just doesn't want to lose the shape of the body, आप उसके लिए सरोगेसी करो. So that is not recommended. सरोगेसी is a medical thing and आपको तभी करनी चाहिए जब आप उसकी नीड है, कि आप किसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हो या आपका कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आप फर्टाइल हो but you cannot carry the child for that time. So yes, you should use a surrogate at that time, but it should not be made into a very trivial matter कि मेरे को ऐसा रहना है तो चलो मैं सरोगेट. पर अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, आई डोंट थिंक इस किस्म की सरोगेसी अब अलाउड भी होगी. यू विल हैव टू गिव सम रीजन कि आप क्यों सरोगेसी कर रहे हो. Right. Now I really want to touch base on child obesity. I was reading these stats somewhere कि in the year 2000 there was just 2% child obesity in India, and now in the year 2024 it's 14.4%. That means there's been a 620% increase since the past one generation that's passed, right? So आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये इंडिया में इतना ज़्यादा increase कर रहा है, and how is it unhealthy? The simple thing is India is becoming more westernized nowadays, है ना. हमारा ग्लोबलाइजेशन हो गया है. देयर इज नॉट मच डिफरेंस. एक बच्चा जो दिल्ली में है और एक बच्चा जो न्यूयॉर्क में है, बहुत फर्क नहीं है. 15 साल पीछे आप जाओगे तो बहुत फर्क था. इंडिया के बच्चे अलग तरह से थे. अब मीडिया का इतना एक्सपोजर है, चाहे सोशल मीडिया बोलो या वट एवर, देयर इज सो मच मिक्सिंग गोइंग ऑन. जो वाले ट्रेंड्स वहां चल रहे हैं, जो वाले फैड्स यूएस में होंगे, वही सेम फैड्स इंडिया के टीनेजर्स भी कर रहे होंगे. सो 15 साल पहले अगर हम जाएंगे तो आपका एक दूसरे किस्म का एनवायरमेंट था, एंड द बेसिक एनवायरमेंट इन इंडिया या वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अगर बहुत पीछे उनको भी चले जाओगे, मच हेल्दियर एनवायरनमेंट था जिसमें आप होम फूड्स लेते थे, घर के खाने खाते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे. आपको इतनी ज्यादा बाहर की मार्केट की चीजें मिलती ही नहीं थी, इतनी चॉइसेस ही नहीं थी. मगर अब हम जिस वर्ल्ड में अब हम आ गए, अब जिस एरा में हम जी रहे हैं, आपके पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं. चाहे आप वो चिप्स उठा लो, चाहे कोई पैक्ड फूड उठा लो, चाहे कोई सीरियल उठा लो, देयर इज सो मेनी रेडीमेड फूड्स, एंड दैट इज व्हाई उनमें आपके प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, उनके एडिटिव्स भी होते हैं, एंड ऑब्वियसली देयर इज सो मच ऑफ जंक फूड अवेलेबल नाउ. और किसी भी बच्चे या किसी भी टीनेजर को जब इतनी अनलिमिटेड चॉइसेस मिलेगी, नोबडी विल प्रेफर कि मैं भिंडी चावल खाऊं जब उसको इतने टेस्टी ऑप्शंस मिल रहे हैं, विच आर अनहेल्दी बट टेस्टी ऑप्शंस मिल रहे. सो बिकॉज ऑफ वी कैन से द ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल दिस, और जो थोड़ा सा क्रेज भी आ जाता है कि अरे ये फॉरेन मतलब ये ऐसा चल रहा है तो हम भी ऐसा करें. सो उसकी वजह से ये अनहेल्दी हैबिट्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं. एज लॉन्ग एज आप घर में फ्रेश खाना
खाना बनाओ, होम कुक फूड बनाओ, चाहे सैलेड ही बनाओ, तो यू विल नॉट हैव बिकम ओबीस। तो ओबेसिटी इसी वजह से आई है बिकॉज अब शुगर ड्रिंक्स आ गई हैं, हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पे बड़ी सारी जस्ट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ चीनी है। वैसे योगर्ट्स आ गए, दही बहुत अच्छा है इंसान के लिए, वन शुड ईट कर्ड, बट अगर आप उसमें शुगर से भरे वाला योगर्ट ले लोगे, फ्लेवर्ड योगर्ट ले लोगे, तो जो दही के फायदे हैं वो तो खत्म हो गए, यू आर जस्ट ओवरलोडेड विद शुगर एंड सॉल्ट एंड ऑल दैट, सो दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू दिस ओबेसिटी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्क्रीन हैज आल्सो कम, अब तो स्क्रीन टाइम ही है, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, सो दोनों तरफ से आ गया है, एक तो आपका इंटेक भी अनहेल्दी है और आपका फिजिकल एक्टिविटी भी जीरो हो गया है। राइट, एंड यू नो एक और चीज मैंने नोटिस करी, आई वाज रीडिंग दिस केस स्टडी ऑफ केलॉग्स कि इंडिया में पहले सब लोग ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में डोसा या फिर उत्पम, इडली, या फिर नॉर्थ इंडिया में कुछ परांठे लाइक पनीर पराठा, कुछ ऐसी चीजें खाते थे, राइट? बट अब मतलब उन्होंने इतने thousands of crores pump in करे in their marketing just to change this habit of Indians, and unhealthy cereals, carbs से भरे हुए, sugar से भरे हुए, उनको healthy portray किया. So that is something that's now changing, I believe, in India. लोगों को इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस हो रही है. यस, बिकॉज ये भी था ना कि सीरियल्स आ गए तो खिलाने वाले को भी थोड़ा आसान है। रेडीमेड, एज यू सेड, इट इज अ रेडीमेड फूड, फटाफट बनाया, फटाफट सर्व किया, बट यस इट इज लोडेड विद शुगर एंड इट हैज एक्चुअली नो हेल्थ बेनिफिट। वो तो एक्चुअली जैसे टॉफी खा के आप जा रहे हो, सो यस इट इज, बट यस एज आई सेड अब पेरेंट्स की अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है, सो दे आर गोइंग बैक, एटलीस्ट थोड़ा फाइबर ज्यादा कर रहे हैं कि ओट्स ही खिला रहे हैं, जस्ट स्टिल मच बेटर देन कि आप सीरियल्स खिला लो, दलिया खिला लो, यू नो, सो या दैट नीड्स टू चेंज। एक और चीज अभी आपने जैसे बोला, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, राइट? इंडिया में भी बहुत सारे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो किड्स जनरली स्पेंड देयर टाइम ऑन द स्क्रीन, राइट? सो एंड मोस्टली खाते टाइम, लाइक मोस्ट ऑफ द किड्स, इवन इन माई फैमिली, इफ आई सी जिनके छोटे बच्चे हैं, माई बुआज और माई आंट्स, उनके बेबीज दे डोंट ईट देयर फूड विदाउट द स्क्रीन। मतलब जब तक उनका कार्टून नहीं चल रहा आईपैड पर, टीवी पर, तब तक दे वोंट ईट. सो so this is a very wrong practice and ये practice सबसे ज्यादा बढ़ गई जब कोविड आया था 2020 में, एंड स्क्रीन टाइम इज नॉट रिकमेंडेड। हम हमेशा से कहते थे स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड नहीं है, बट एज यू सेड पेरेंट्स वर्किंग है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, सो एक आसान जरिया बन जाता था कि बच्चे को थोड़ा एंटरटेन रखने के लिए चलो स्क्रीन लगा दो या खाने के टाइम स्क्रीन दिखा दो। बट this practice, as I said, maximum was done in the age of 2020 year में सबसे ज्यादा हुआ, एंड अब वो बच्चे जो 4 साल के हैं, they have a lot of क्या कहेंगे delays in them। किसी बच्चे में स्पीच डिले है, किसी में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ये चीजें पहले हम बोलते थे, बट हर इंसान को यकीन नहीं आता है, पेरेंट्स को लगता है क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं थोड़ा बहुत टीवी देख लेगा तो क्या ही हो जाएगा, बट नाउ इसके असर पेरेंट्स ने देख लिए हैं। सो जब ये बच्चे इतना स्क्रीन देखते हैं, उनका सारा जो सेंसरी होता है, जो हमारी सेंसरी डेवलपमेंट है, उनकी सारी बदल जाती है, जिसकी वजह से ये किड्स मोस्टली सोशली कम्युनिकेटिव डिसऑर्डर्स में जा रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, ये अपने उसी वर्ल्ड में रहेंगे। आप बंद करोगे तो एजिटेटेड हो जाएंगे, स्टबर्न हो जाएंगे, चीजों को फेंकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अग्रेसिव भी हो जाएंगे जैसे जैसे बड़े होंगे। कुछ में स्पीच का लैग आ जाएगा, या कुछ में स्पीच का अलग किस्म का आएगा कि वो बोलेंगे तो बहुत, मगर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज नहीं वो दे रहे। एंड इट हैज आल्सो लेड टू अ राइज इन ऑटिज्म, इट हैज लेड टू किड्स जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे किड्स इसकी वजह से फिट होने लगे हैं। सो स्क्रीन टाइम तो इज अ टोटल नो, स्पेशली 2 years तक आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि अब के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी बॉर्न है, या किसी का बच्चा अभी 6 महीने का है, दे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस समथिंग इन देयर फैमिली कि उनके कजिन के बच्चे ने देखा है, फलाने के बच्चे ने देखा, तो दे हैव सीन की द वर्स्ट इफेक्ट। सो अब आई वुड लाइक टू से कि द पेरेंट्स भी एक चेंज पे आ रहे हैं। देयर इज अ सेट ऑफ पेरेंट्स जो अब अपने बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिखा रहे हैं, एंड वही है 2 years तक देयर हैज टू बी नो स्क्रीन टाइम। ये इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको 2 साल तक बिल्कुल स्क्रीन टाइम 0 रखना। बट अब हम इतने लाइक एडवांस्ड टाइम में रह रहे हैं, राइट? हर किसी के घर में आईपैड, टीवी, सब कुछ है ही। मतलब टीवी तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, राइट? बेबीज, किड्स। सो व्हाट्स द मैक्सिमम स्क्रीन टाइम जो एक बेबी को देखना चाहिए? एक बेबी के लिए 0, एक किड को। देखो इसमें यह है कि आपका जब तक 2 years तक तो हम स्क्रीन टाइम कहते हैं रखना ही नहीं है। एंड आई ऑलवेज से कि अगर पेरेंट्स अपने को टीवी देख रहे हैं जरूर देखिए, बट अगर आपका बच्चा वहां खेल रहा है, जैसे 1-1.5 साल का बच्चा है एंड चाइल्ड इज प्लेइंग देयर, इट इज फाइन, बट द मोमेंट द चाइल्ड स्टार्ट्स हैविंग एन इंटरेस्ट इन द स्क्रीन, कि वो अपने खिलौने छोड़ के अब वो भी स्क्रीन पे फोकस करने लगा है, यू शुड स्विच इट ऑफ। पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू रेगुलेट देमसेल्व्स, यू कैन नॉट बी लाइक कि हम स्क्रीन 24 घंटा देखेंगे, बिकॉज आप भी तो बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। आप स्क्रीन कैसे दो?
सकोगे, आपने बच्चे के साथ कुछ गेम खेलना है, कुछ कलरिंग करना है, कोई स्टोरी बुक उसको पढ़ना है, कुछ एक्टिविटी उसके साथ करना है, तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। सो टिल 2 years इट हैज टू बी जीरो स्क्रीन टाइम। आफ्टर दैट इट कैन बी फॉर 1 or 2 couple of hours हो सकता है, जिसमें आपको बैलेंस करना है कि बाहर की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, वो पार्क जा रहा है नहीं जा रहा है, एंड वो सब करने से पेरेंट्स भी बच्चे के डेवलपमेंट में ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका भी Right. इनपुट ज्यादा अच्छा आएगा। I saw this video on YouTube only a couple days ago कि Cerelac is really unhealthy. You think that's true? Yeah, that's true. I always said कि you should go for home foods. Preservative वाली कोई भी चीज मत यूज करो, and Cerelac जो भी है एक प्रोसेस्ड फूड है। Why do you need to give processed food जब आप अपना फ्रेश फूड बच्चे को दे सकते हो? Yes, कभी कोई बहुत इमरजेंसी किसी को है, कोई ट्रैवल कर रहा है और बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा है, बट इवन देन आई विल से यू हैव ऑप्शंस लाइक बनाना, कुछ नहीं मिल रहा है तो केले खरीद के दे दो, है ना? सो आई विल नेवर रिकमेंड कि आप ये इस किस्म के प्रोसेस्ड फूड्स बच्चे को खिलाओ। बेबीज को टूथपेस्ट किस एज में यूज करना चाहिए? या यू कैन, देयर आर स्पेसिफिक टूथपेस्ट जो बच्चों के लिए आती है। वन ऑफ द ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, कोई एक ब्रांड टूथमिन है, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स हैं। बेबी ब्रांड्स आते हैं जो आपकी बेबी कंपनीज हैं अलग अलग चीज की, वो बबल गम फ्लेवर्ड या वट एवर फ्लेवर टूथपेस्ट बनाते हैं। सो जब से बच्चा आपका खाना खाना स्टार्ट करता है तब से आपको फिंगर ब्रशिंग उसको करनी होती है। सो फिंगर ब्रशिंग में आपको, इट इज लाइक अ प्लास्टिक टाइप ऑफ अ ब्रश विच यू पुट ओवर योर फिंगर एंड यू ब्रश द टीथ, सो यू कैन यूज द टूथपेस्ट। एंड दीज टूथपेस्ट बनी इस तरह से होती है कि अगर बच्चा उसको खा लेगा या कुछ करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो एटलीस्ट 1 year से तो आपको ब्रश करना ही करना चाहिए बच्चे को, जो भी थोड़ा मोड़ा सा। ओके, अनदर थिंग मैंने नोटिस करी है कि बहुत सारे बच्चे रात को दूध पीकर सोते हैं एंड उसमें कुछ मिला के, लाइक चीनी वाला दूध या फिर बॉर्नविटा वाला दूध। एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल स्टोरी। माय कजिन, शी इज सिमिलर टू माय एज, एंड वो छोटे होते ना बॉर्नविटा वाला दूध पीकर सो जाती थी। लाइक शी यूज्ड टू ड्रिंक इट एंड देन शी यूज्ड टू फॉल asleep. And over time she developed like Bonvita teeth, like chocolate ब्राउन कलर के टीथ हो गए उसके सारे। सो डू यू थिंक रात को दूध पीना इज अ गुड प्रैक्टिस या फिर ब्रश करके ही सोना चाहिए? आप किस एज के बच्चे की बात कर रहे हो, है ना? कि पहली बात है कि एज आई सेड कि हमें फोकस करना है कि हम दूध ज्यादा बच्चों को ना दें, चाहे वो 2 साल के बड़े भी हैं। 2 साल के पहले तो हम वैसे भी रिकमेंड नहीं करेंगे, हम कहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग करे, ब्रेस्ट फीडिंग कोई टेपर करके बंद करो। अगर यस कोई बच्चा बॉटल फीड ले रहा है या बड़ा होकर बहुत ज्यादा दूध पी रहा है, सो ये देयर इज समथिंग विच इज नोन एज केरीज हो जाता है, डेंटल केरीज। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग ही लंबा करें, 4 years तक कर लें, विच इज नॉट रिकमेंडेड, आपको मैक्सिमम 2 years तक बंद कर देनी चाहिए, पर वो मदर का लाइक निपल मुंह में रख के ही सोते रहेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो इवन दैट विल लीड टू केरीज। तो अगर कोई बच्चा ऐसे इतना शुगरी, बिकॉज बॉर्नविटा वट एवर इज ऑल फुल ऑफ शुगर, आप उसको लेके कर रहे हो, सो यस इट विल कॉज डिस्कलरेशन, इट विल कॉज केरीज। सुबह का ब्रश तो इंपॉर्टेंट है, मगर रात को ब्रश करके सोना इज मोर इम्पोर्टेंट। आप कभी सुबह का मिस भी कर लो, रात वाला मिस नहीं करना चाहिए। एंड एज आई सेड, आई एम नेवर इन फेवर कि आप बहुत ज्यादा दूध पियो। तो दूध इंटेक को ही कम रखना है, और फिर ये शुगरी ड्रिंक्स तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। राइट, व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स फॉर किड्स? वैक्सीन देखो, यूनिवर्सल वैक्सीन चार्ट होता है जनरली जो हम वैक्सीनेशंस देते हैं, जैसे इंडिया में हमारा इंडियन इम्यूनाइजेशन चार्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है। ओवरऑल पर सारा जो हमारे चार्ट्स है बेसिकली वेरी सिमिलर, एंड दीज वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज सम, इंडिया में तो कम वैसे ग्रुप हैं, पर वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़े सारे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं बच्चों को वैक्सीनेट ही नहीं करेंगे। हाँ, बट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज ये जो वैक्सीनेशन है ये क्या है, ये आप बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हो कॉमन इलनेसेस से, जो एक जमाने में इतनी ज्यादा थी, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी इतनी ज्यादा थी। सो वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन इंडिया में। आपका बीसीजी वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। आहिस्ता आहिस्ता पोलियो अब इरेडिकेट हो चुका है, बिकॉज इतने ज्यादा वैक्सीन कवरेज आई। सो अगर हम वो चीजें सब हटा देंगे, वापस रिसर्जेंस आ जाएगी इन चीजों की, ये बीमारियां वापस आ जाएंगी। जैसे अभी हम पहले हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें गवर्नमेंट में की तरफ से एमएमआर वैक्सीन होता था। उस एमएमआर वैक्सीन का मतलब है मीजल, मम्स एंड रूबेला। फॉर वट एवर रीजन दैट बिकेम एमआर वैक्सीन, कि उसमें से हम मम्स जो था वो हट गया। बट नाउ वी हैव फाइंड कि 4 साल 5 साल पे कितने बच्चे हैं, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं मिलती है जो कि उनको पहले मिलती थी 4-5 years पे। सो दे आर कमिंग विद मम्स। सो अगर आप ये सारे वैक्सीन नहीं दोगे तो वो जो बीमारियां हैं जो अंदर कंट्रोल आई हैं वो वापस आ जाएंगी, बिकॉज बच्चा पूरा अनइम्यूनाइज्ड है, उसको कोई एक्सपोजर नहीं मिला, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सो आपके वैक्सीन लाइक बीसीजी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, दीज आर वेरी बेसिक वैक्सीन एंड ऑब्वियसली दे शुड नॉट बी मिस्ड। और इसीलिए गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में तो ये वैक्सीन आपको फ्री में कहीं पे भी हेल्थ सेंटर पे हर जगह फ्री में मिल जाते हैं। सो
So you should not miss the vaccines. One more question. I remember when I was younger. Because जो ओरल पोलियो होता है आप पहले जाके सेंटर पे लेते हो, देन गवर्नमेंट का एक पल्स चलता है जिसको पल्स पोलियो कहते हैं. पल्स पोलियो इसके जैसे आज के टाइम पे इतने सारे बच्चे एक साथ उनको पोलियो ड्रॉप्स मिलेगा, वरना हर इंसान अलग अलग टाइम पे जा रहा है. तो 5 साल के नीचे के सारे बच्चों को एक टाइम पे मिलेगा, जिसकी वजह से एक टर्म होता है हमारा जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी. हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो पर्पज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी इज दैट अगर बाय चांस कोई अनवैक्सीनेटेड बच्चा कहीं से रह गया वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा, बिकॉज उसको ये हर्ड इम्यूनिटी उसको प्रोटेक्ट करेगी. एंड दिस पल्स पोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बहुत कॉमनली पेरेंट्स हमें ये भी पूछते हैं कि हमने तो अपना ड्रॉप्स दे दिया है, हमारा तो वैक्सीनेशन हो गया है, तो क्या हमको ये पल्स करवाना है? यस, बिकॉज दिस पल्स इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी. दिस इज विच विल कॉन्ट्रीब्यूट कि आपका पोलियो इसीलिए इरेडिकेट हुआ है, इसीलिए खत्म हुआ है. सो उसका एक अलग क्राइटेरिया है और आपका वैक्सीनेशन एक अलग चीज है. So now we're gonna play a game. It's a myth and fact game. I'll just speak out a sentence. आपको बताना है कि वो myth है या fact है. Okay. So now we're gonna play a game. It's a myth and fact game. मैं बस one liner sentences बोलूँगी and आपको उनका one word का आंसर देना है. Maybe like a small explanation. Myth and fact. Okay. So first is, should babies be using walkers? ये बहुत सारी न्यू मॉम्स की क्वेरी आती है कि बेबीज को वॉकर देना चाहिए या नहीं. या सो यू कैन गिव वॉकर जब बच्चा खुद क्रॉल करके खड़ा होके चीजों को पकड़ के खड़ा हो रहा है, जो कि आपके 9-10 महीने की उम्र होती है. यू कैन गिव वॉकर एट दैट टाइम. अर्ली वॉकर के कोई सोचता है मैं 6 मंथ्स पे दे दूं, अभी बच्चा क्रॉल भी नहीं कर रहा है, 5 मंथ्स पे दे दूं, वो आपको नहीं करना. जब एक बच्चा 3 मंथ्स का हो जाता है तो फिर उसको पूरी रात सोना चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है, बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है. जनरली बच्चे जो हैं जब इनिशियली मंथ्स में वो दिन में रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, रात में ज्यादा डिस्टर्ब नींद होती है उनकी, बट आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो होते हैं वो भी ट्रेन हो जाते हैं तो वो रात को सोते हैं. पर एक 3 मंथ ओल्ड चाइल्ड नॉट नेसेसरली विल स्लीप थ्रू आउट, बिकॉज अगर वो 12 बजे कोई फीड लेगा, नेक्स्ट फीड वो 3 या 4 बजे ले सकता है. कुछ बच्चे ज्यादा फंसी होंगे तो ज्यादा भी जा. सो इट इज वी कैन नॉट लाइक कंपार्टमेंट ऐसा लेबल नहीं कर सकते हैं कि सब बच्चे एक ही तरह से एक्ट करें. बट येस, एटलीस्ट 3-4 घंटे की साउंड स्लीप एक स्ट्रेच में लेनी चाहिए कि 12 बजे अगर दूध पिया तो अगला दूध वो बच्चा 4 बजे पी रहा है, समथिंग लाइक दैट. बेबीज को गोरा रखने के लिए मिल्क एंड मलाई लगानी चाहिए. हाँ, मिल्क और मलाई तो किसी वो मलाई तो ये तो ऑब्वियसली एक मिथ ही है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है. स्किन कलर आपका खुद से आता है एंड आपका इनहेरेंट पेरेंट्स से आता है. एंड आई वुड से कि वाइट स्किन तो एक्चुअली इज वेरी मच प्रोन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. जब आप बड़े होते हो उसमें आपके एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गया, बाद में रिंकल्स हो गया, सब कुछ ज्यादा आते हैं. डार्क स्किन इज एक्चुअली अ मोर हेल्दियर स्किन, बट वट एवर स्किन टोन आपकी है वो है, एंड इससे कुछ नहीं होने वाला. ओके, काजल जो होता है वो आईज को बड़ा करता है. या सो वो बड़ा नहीं करता है. इट इज जस्ट अ कंट्रास्ट कि हम भी मेकअप करेंगे तो हमारी आंखें बड़ी लगेंगी, नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा सा अपना टोन डाउन फेस लगेगा. को नहीं So, लगाना ऐसा कुछ चाहिए. नहीं है. स्पेशली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स तो बिल्कुल इट्स अ बिग नो नो. इनफैक्ट आईज को उल्टा खराब कर सकता है, आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो 6 मंथ्स तक काजल नहीं लगाना एंड इट इज ओनली अ कॉस्मेटिक थिंग और कोई फायदा नहीं है इसका. ओके, बेबीज को, न्यूबॉर्न बेबीज को ऑयल मसाजेस करवानी चाहिए टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. आई विल से ऑयल मसाज इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रीटर्म बेबीज, जिसमें हम कोकोनट ऑयल मसाज रिकमेंड करते हैं या एमसीटी ऑयल कहा जाता है, उसका मसाज करते हैं बिकॉज वो एडेड फैट्स बच्चे को देता है. Okay. बाकी बड़े बच्चों में ऑयल विल जस्ट कंट्रीब्यूट टू अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन ऑन द बेबी पार्ट, थोड़ा सा स्किन को बेटर कर लेगा, मॉइस्चराइज कर लेगा, और कोई ज्यादा फायदा नहीं आता है टर्म बेबीज में. Okay. या एक और चीज बहुत कॉमन है इंडियंस में कि स्पेशली इन पंजाबी फैमिलीज, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली एंड छोटे होते हैं ना बेबीज को हनी देते हैं. ओके, सो इट्स कॉल्ड घुट्टी, कि जो भी फैमिली मेंबर बेबी को फर्स्ट हनी लिख करवाएगा उसके ट्रेट्स बेबी में इनहेरिट होंगे. या सो ये तो ऑब्वियसली एक जस्ट एक सुपरस्टिशियस सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है. दूसरी बात है कि हनी तो बच्चों को देना ही नहीं है 6 मंथ्स तक, बिकॉज बोटुलिज्म एक चीज, एक हमारा टॉक्सिसिटी एक होती है, बोटुलिज्म टॉक्सिसिटी हम कहते हैं. तो उसमें बच्चे का पेट का इन्फेक्शन वगैरह आ जाएगा, बच्चे का एब्डोमेन डिस्टेंडेड वगैरह हो जाएगा. तो हनी तो उस वजह से हम देते ही नहीं है बच्चों को. सो 6 मंथ्स तक तो हनी आपको देना ही नहीं चाहिए. बट येस, इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि इसको हनी चटा दो. पर अब आहिस्ता आहिस्ता वी आर एजुकेटिंग द पेरेंट्स, सो आई विल स्टिल से कि लॉट ऑफ पेरेंट्स अब इस बात को समझ गए हैं एंड ये प्रैक्टिस थोड़ा डिक्लाइन में आ गई है. राइट. ओके, लुलाबाइज जो होती है, लोरियां, ये बेबीज को सोने में हेल्प करती है.
Lullaby is, yes, you can always sing. The mother can always sing a lullaby. It is like a soothing thing है. मदर की वॉइस बच्चे को वैसी पसंद आती है, सो वो उस तरह से कंट्रीब्यूट करता है कि बच्चा काम डाउन हो जाता है और माँ की आवाज को वो पहचानता है, तो वो सेफ फील करता है. सो यस, देयर इज नो हार्म इन सिंगिंग. Okay. Certain toys will make babies smarter. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक दैट. आई ऑलवेज फील कि आपके जीन्स आपके इनहेरेंट होते हैं, इनहेरेंट आपका इंटेलिजेंस या आईक्यू इनहेरेंट आता है, बट यस आप उसको कितना बूस्ट देते हो वैसा है. मगर जो छोटे बच्चे हैं 1 साल 2 साल में, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स उनके साथ कम्युनिकेट करे, उनको अलग अलग स्टिमुलाई दे, उनके साथ बुक्स पढ़े, उनके साथ कलरिंग करे. ये वाली चीजें अगर आप बेसिक चीजें करोगे तो यहीं से आएगा. इट इज नथिंग कि कुछ हाई फाई स्पेशल बच्चे के लिए लाना है और उसी से उसका होगा. यू डोंट नीड दैट. Okay. बेबीज जो जल्दी बोलना सीख जाते हैं, दे आर ब्राइटर देन देयर पीयर ग्रुप. इट्स नॉट लाइक दैट. सम किड्स बोलते हैं इनहेरेंटली जल्दी, बट आई वुड लाइक टू से आजकल के जमाने में तो बच्चे बोल ही बहुत लेट रहे हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी बच्चे जो है वो स्क्रीन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, पेरेंट्स उनको बहुत अर्ली स्क्रीन एक्सपोजर दिया है, तो अभी तो लैंग्वेज डिले इज सो मच ऑन द राइज. सो यस, बच्चे जल्दी बोलते थे आजकल की सोसाइटी में, लेकिन आपको कोई जल्दी बोलने वाला मिलेगा ही नहीं. बट दैट डजंट मीन कि इनकी इंटेलिजेंस कम होगी. इट इज बिकॉज दे हैव बीन गिवन अ रॉन्ग एक्सपोजर. सो अगर आप करेक्ट एक्सपोजर दोगे, बच्चे वापस जल्दी बोलेंगे, पर जल्दी बोलना डज नॉट ट्रांसलेट इनटू योर आईक्यू. राइट. पिकिंग अप अ क्राइंग बेबी उन्हें बिगाड़ देता है. नो, इट्स नॉट. आई डोंट एग्री विद दैट. आपको बेबी को कंसोल तो करना ही है. यस, देयर आर सम मेथड, जैसे हम फर्बराइजेशन मेथड कहते हैं, जिसमें आप कहते हो कि बच्चा रात को रो रहा है तो बार बार उसको जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में मोस्टली होता है कि बच्चा अलग कमरे में सो रहा है, तो आप बार बार उसको, अगर वो रो रहा है तो उसको सेल्फ कंसोलेशन करना आना चाहिए, उसको खुद चुप कराना आना चाहिए. आई थिंक वहीं से ये एक्सटेंशन हुआ है और ये सवाल आया. सो यस, बट सो इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड अप्रोच. आपको देखना है कि किस किस्म का टेंट्रम हो रहा है. अगर आपको लगता है कि ऐसा वाहिद कोई ऐसा करेक्ट रीजन है, कोई सही वजह है, तो ऑब्वियसली आपने बच्चे को कंसोल करना है. आपने उसको बच्चे को भी सेफ फील करना चाहिए, सिक्योर फील करना चाहिए, कंफर्टेबल फील करना चाहिए. पर अगर आपको लगता है वो जिद का रोना है और उस किस्म का है, तो उस टाइम आपने बच्चे को छोड़ भी सकते हो कि लेट द चाइल्ड कूल डाउन एंड देन यू कैन अप्रोच. जब उसका जिद निकल गया, तब आप उस 3 साल या 4 साल के बच्चे को समझा सकते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो इट इज अ वेरी लाइक आई विल से केस टू केस टाइप अप्रोच. Okay. Teething can cause fevers. या दिस इज जस्ट अ मिथ, बिकॉज टीदिंग के टाइम बच्चे बहुत हाथ वगैरह मुंह में डालते हैं तो इन्फेक्शंस आते हैं, तो दांत आने पर से फीवर नहीं आएगा. Okay. इट्स नॉट करेक्ट. So, okay, last question. Naps during the day are not necessary. That is true, but I will always say everything is related to the age of the baby. जो बच्चे छोटे होते हैं 1 साल या 2 साल तक, दिन में एक बार नैप करने से उनका थोड़ा दे फील मोर रिलैक्स, बिकॉज थोड़ा काम डाउन भी हो जाते हैं. थोड़ा जब वो ओवर एक्सर्ट हो जाता है या ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, दे बिकम वेरी क्रैंकी बाय इवनिंग, है ना. सो अगर वो दिन में नैप कर रहा है बच्चा, इट इज अ गुड थिंग. अब अलग अलग डिपेंड करता है. देयर आर सम किड्स जो 1 साल के बाद बहुत कम दिन में सोते हैं, नैप नहीं लेते, तो जबरदस्ती भी नहीं करवाना है. इट्स नॉट लाइक दैट. बट अगर बच्चा दिन में एक बार 2-3 बजे कोई एक नैप ले रहा है 1 hour 1.5 hour की, it's a good thing. Okay. So that was all for today, guys. Thank you so much, Dr. Sharon, for giving us your precious time. And I hope कि आपने जो भी information हमें पास करी आज, वो सब न्यू पेरेंट्स को और ज़्यादा अवेयर कराए and वो अपने बेबीज के लिए perfect, ideal steps ले पाए. Yeah, thank you so much for having me here. Thank you.